الذوالفقار نامی تنظیم آخر کیا تھی؟ طیارہ ہائی جیکنگ اور مرتضی کا کردار اور بہن بھائی میں شدید اختلافات کی وجہ۔ 20 ستمبر 1996 کو آخر کیا ہوا؟ 70 کلفٹن پر پولیس مقابلہ ہوا تو پہلی گولی کس نے چلائی؟ پولیس سے جھڑپ کی وجہ سندھ پولیس آفیسر شعیب سڈل کیا بتاتے ہیں اور مرتضی کے بعد کیا ہوا؟ مرتضی کے حلق میں تالو کا خون گرتا رہا لیکن گردن پر ایک ٹانکا لگ جاتا تو کیا زندگی بچانا ممکن تھی؟ اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے کردار انسپکٹر ذیشان کاظمی تعلق کیسے اور کیوں جوڑا جاتا ہے؟ یہ تحریر برطانوی نشریاتی ادارے کی اردو سروس سے لی گئی ہے۔ 1981 جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس وقت ان کے بڑے بیٹے میر مرتضی بھٹو اور چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ اچھا، برطانیہ کے علاوہ میر مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان اور ملک شام میں بھی کافی وقت ساتھ گزارا۔ البتہ جب الذوالفقار نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی اور جب الذوالفقار نامی تنظیم فعال ہوئی اور اخبارات میں اس کی خبریں شائع ہونا شروع ہوئیں تو انہی دنوں کی بات ہے کہ اخبارات میں ایک اور سرخی لگتی تھی اور وہ یہ تھی کہ میر مرتضی بھٹو کا تعلق جو ہے وہ شاید افغان انٹیلیجنس اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی ہے، یعنی کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث بتائے جاتے تھے۔ کابل میں جلا وطنی کے دوران 1981 میں مرتضی بھٹو نے افغان وزارت خارجہ کی ایک آفیسر کی صاحبزادی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ تاریخ تھی 29 مئی 1982۔ فاطمہ بھٹو 3 برس کی تھیں کہ مرتضی بھٹو اور فوزیہ میں علیحدگی ہو گئی اور مرتضی فاطمہ بھٹو کے ہمراہ ملک شام چلے گئے۔ شام میں میر مرتضی بھٹو کی ملاقات غنوہ بھٹو سے ہوئی اور 1989 میں دونوں نے شادی کر لی۔ غنوہ بھٹو مرتضی بھٹو کے فرزند ذوالفقار جونیئر کی والدہ ہیں۔ مگر سوال یہ کہ میر مرتضی جلا وطنی کیوں کاٹ رہے تھے؟ 2 مارچ 1981 پی آئی اے کی پشاور جانے والی پرواز PK-326 ہائی جیک کر لی گئی اور الذوالفقار نامی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ جہاز کابل میں لینڈ ہوا اور ہائی جیکرز نے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کو دھمکی دی کہ 53 افراد کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر یہ رہا نہ ہوئے تو جہاز میں سوار تمام 143 افراد کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن جاری رہی۔ بالآخر حکومت پاکستان نے ہائی جیکرز کے مطالبات مان ہی لیے اور تمام مسافروں کو رہائی مل ہی گئی۔ میر مرتضی بھٹو کا خاندان، خاص طور پر ان کی بیٹی فاطمہ نے ہمیشہ الذوالفقار کی مسلح کارروائیوں یا ان سے مرتضی بھٹو کی وابستگی کی تردید ہی کی ہے۔ 17 اگست 1988 طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء کی ہلاکت اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی کئی سیاسی جماعتیں جنرل ضیاء کی موت کو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا اختتام کہتی ہیں اور جمہوریت کی نئی امید پھر سے دکھائی دیتی ہے۔ میر مرتضی بھٹو یہ سمجھتے تھے اور شاید ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے کچھ سینئر رہنماؤں کا بھی یہ موقف تھا کہ شاید بے نظیر بھٹو یعنی ان کی جو بہن ہے ہمشیرہ، انہوں نے کچھ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیل کر لی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے جو ان کے والد کے زمانے میں تھی، اور یہی وجہ اختلافات کے لیے سامنے بھی آئی۔ بعد میں کچھ ذرائع یہ بھی کہتے تھے کہ شاید میر مرتضی بھٹو کو اس پالیسی پہ بھی اختلاف تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود آصف علی زرداری طے کرتے تھے، اور وہ اپنی بہن سے اس لیے بھی خائف تھے کہ وہ آصف علی زرداری کی ان پالیسی سے شدید نالاں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان پالیسیز کی وجہ سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ وقار یا وہ معیار نہیں رہا جو ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ 16 نومبر 1988 پاکستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی اور میر مرتضی کی بہن بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بہن بھائی کے اختلاف کو تسلیم کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ مرتضی کے آخری وقت میں بہن بھائی کا اختلاف بہت کم ہو گیا تھا اور بے نظیر کیونکہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی پہ یقین رکھتی تھی اس لیے جمہوری طریقوں سے بات کرنا چاہتی تھی۔ بی بی ڈیل کی نہیں ڈائلاگ کی قائل تھی۔ میر مرتضی بھی یہ مان گئے تھے اور خود کو سیاسی نظام کا حصہ بنانے کے لیے ہی الیکشن میں شامل ہوئے تھے، مگر پھر بھی وہ کبھی کبھی پرچی کے بجائے برچی کی بات کرتے تھے اور ان کا طرز سیاست جہرانہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی اور وہ یہ کہ ان کے والد اور بھائی کو بے دردی سے مارا گیا۔ میر مرتضی کا خیال تھا کہ ان کی بہن کی حکومت میں کچھ وزیروں کی کرپشن نے بھی ان کے والد کی پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اب میر مرتضی بھٹو کا روب اور دبا کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ ان کے لیے کہیں پہ بھی موومنٹ کرنا یا سڑک پہ نکل کے اپنے کچھ افراد کے ساتھ جو ان کے کارکنان تھے لیکن
वो मुसल्लह होते थे, शहर में घूमना, कराची में घूमना या सिंध के दीगर अजला में घूमना कोई बड़ी बात नहीं थी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने फैसला किया कि वो कराची से अपने वालिद की कब्र यानी कि गड़ी खुदा बख्श का सफ़र करेंगे और इन्हीं अफराद के साथ सफ़र करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत ने ये समझा कि उनका ये सफ़र जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई अलार्म सूरत हाल बन सकता है और हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई। उस वक्त की पुलिस एहलकार, उस वक्त के अखबारात में अगर आप रिसर्च करें तो ये बताते हैं कि सूरत हाल ये बन गई कि कराची से लेके लाड़काना तक उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन हर जगह पर पुलिस वालों को अपनी इज्जत बचाना जो है वो मुश्किल पड़ गया, क्योंकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने किसी की भी नहीं सुनी और वो अपना सफ़र तय करते रहे। हत्ता कि उस वक्त के एक पुलिस ऑफिसर जो बाद में बरतानिया शिफ्ट हो गए थे और बरतानिया में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, उनका नाम था फयाज खान। और फयाज खान ये कहते हुए दिखाई देते हैं, जो बरतानवी जरीदे की एक रिपोर्ट के अंदर जो है, उर्दू वेबसाइट के अंदर जो है वो शाया हुआ कि फयाज खान ये कहते हैं कि मीर मुर्तज़ा का उस वक्त का रवैया कुछ इस तरह से हो गया था कि उनके लिए किसी भी थाने के अंदर दाखिल होना कोई बड़ी बात नहीं होती थी और वो अपने उन कारकुनान की तलाश में जिन्हें पुलिस मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लेती थी, छुड़वाने के लिए किसी भी थाने के अंदर चले जाते थे। हत्ता कि जिस रात ये पुलिस मुकाबला हुआ है, मुबैना पुलिस मुकाबला या पुलिस मुकाबला, उस रात भी मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने कराची के इलाके सुरजानी टाउन में एक जलसे में खिताब करने के बाद सीधे कराची CIA सेंटर का रुख किया और CIA सेंटर के अंदर दाखिल होकर अपने एक साथी अली सनारा को छुड़ाने की कोशिश की थी और वहाँ वो उनको तलाश करते रहे, लेकिन वो वहाँ उन्हें किसी लॉकअप में नहीं मिले। एक पुलिस एहलकार जो उस वक्त ऑफिसर भी हुआ करते थे और बाद में रिटायर हुए, उन्होंने एक जरीदे को इंटरव्यू देते हुए ये तक कहा कि जिस वक्त मीर मुर्तज़ा भुट्टो या उनके साथी किसी थाने में या किसी इदारे के पास जाते और वहाँ दाखिल होकर लॉकअप्स को चेक करते तो सूरत हाल ये होती थी कि उनके साथ मौजूद मुसल्लह अफराद जो है वो पुलिस एहलकारों का असलहा ले लेते थे और पुलिस एहलकारों को ज़मीन पे लिटा दिया जाता था जब तक कि उन लॉकअप्स की अच्छी तरह से सर्चिंग नहीं हो जाती थी। अब ये अली सनारा कौन था और मीर मुर्तज़ा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी अपने इस साथी को क्यों तलाश कर रहे थे? इस सवाल का जवाब सिंध पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर शुएब सडल के पास मिलता है। शुएब सडल बताते हैं, उस वक्त कराची किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पे रॉकेट हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी से जुड़ी कई वारदातें हो चुकी थी। अली सनारा ऐसे ही वाकयात में नामजद और रियासती इदारों को मतलूब था, जबकि MQM के खिलाफ उस वक्त होने वाले ऑपरेशन के मरकजी किरदार इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ने ही 16 सितंबर 1996 को अली सनारा को गिरफ्तार किया था। 20 सितंबर 1996। अब जो कुछ आप सुनेंगे वो बरतानवी नशियाती इदारे की उर्दू वेबसाइट पे लफ्ज ब लफ्ज तहरीर है। ये जुमे का दिन था। मुर्तज़ा भुट्टो को जलसे के लिए कराची के इलाके सुरजानी टाउन जाना था। उस रोज दो फैसले हुए, एक पुलिस ने किया और दूसरा मुर्तज़ा भुट्टो ने। मुर्तज़ा का फैसला था कि वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुलिस का फैसला था कि मुर्तज़ा को रोक के पहले उनके साथियों के असलहे के लाइसेंस चेक करेंगे और जरूरी हुआ तो उनके साथियों को गिरफ्तार भी करेंगे। मुर्तज़ा भुट्टो 70 क्लिफ्टन वाले घर से निकले। पुलिस उसके ठीक सामने शारे ईरान पर पहले से मौजूद थी। ये रास्ता वो है जो दो तलवार चौरंगी से होता हुआ साहिल समंदर की जानिब जाता है। इस टीम में उस वक्त के SHO क्लिफ्टन हक नवाज सियाल, ASP शाहिद हयात और ASP राय मोहम्मद ताहिर शामिल थे। पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो के काफिले को रोकना चाहा, मगर मुर्तज़ा भुट्टो के काफिले में शामिल कोई भी गाड़ी नहीं रुकी और चली गई। शुएब सडल का कहा कि वाजिद दुरानी ने उन्हें बताया कि अब मंसूबा ये था कि जब मुर्तज़ा भुट्टो का काफिला वापस आएगा तो पुलिस उनकी गाड़ी को घर के अंदर जाने देगी और बाकी मौजूद पीछे गाड़ियों को रोक कर असलहे के लाइसेंस चेक करेगी। शुएब सडल ने बताया, तो मैंने वाजिद दुरानी से कहा कि ये इस तरह नहीं हो सकता, मगर उसने कहा, सर मैं अब यहाँ खुद आ गया हूँ और मैं मुर्तज़ा को जानता हूँ, मैं आसानी से डील कर लूंगा। दूसरी तरफ मीर मुर्तज़ा ने सुरजानी टाउन में जलसे से खिताब करना था। वो सुरजानी टाउन पहुँचे। उनके खिताब में पुलिस पर भी तनकीद हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिंध पुलिस नस्लकुशी में मुलविस है, उसके कुछ अफसरान सियासी कायदीन बनकर बयानात देते हैं। उन्होंने अपने खिताबात में अपने साथी अली सनारा की गिरफ्तारी को भी सिंध पुलिस के ऊपर डाला और कहा कि जिस तरह से कराची में नस्लकुशी की जा रही है, इसी तरह से अली सनारा को भी गिरफ्तार किया गया। अगर इसे कुछ होता है तो इसके सियासी नताइज कुछ और ही होंगे। ये जलसा खत्म हुआ। रात के 8:30 बज रहे थे। मीर मुर्तज़ा जलसे के बाद वापस 70 क्लिफ्टन वाली शारा ईरान पहुंचे। नक्शा ये था कि इस रोड पे अब वाजिद दुरानी ट्रैफिक चौकी पर मौजूद थे। ASP शाहिद हयात, ASP राय ताहिर और SHO हक नवाज सियाल शारा ईरान पर फुटपाथ पर तैनात पुलिस की नफरी के साथ मुर्तज़ा भुट्टो की आमद के मुंतजिर थे और इस खदशे के पेश नजर के मुर्तज़ा भुट्टो का काफिला 70 क्लिफ्टन जाने के लिए दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकता है, यानी पार्क टावर के बैक साइड पर। तो इसलिए वहाँ पर भी पुलिस की कुछ गाड़ियाँ तैनात की गई थी, जिनमें SHO नेपियर थाना आगा जमील, SHO गार्डन शब्बीर कायम खानी शारा कायदीन के दूसरे सिरे पर अपने एहलकारों के हमरा मौजूद थे।
कुछ ही देर के बाद कम से कम 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल मीर मुर्तुजा भुट्टो का काफिला अपने रिवायती रास्ते पर 2 तलवार से होता हुआ सड़क के अंदर आया और 70 क्लिफ्टन के सामने पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक सिर्फ लाइसेंस चेक करने थे, इसलिए प्लान के मुताबिक पहली गाड़ी जिसमें मीर मुर्तुजा थे या हो सकते थे उसे घर के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई और बाकी 3 गाड़ियों को पीछे रोक लिया गया। लेकिन जो दूसरी गाड़ी मीर मुर्तुजा के करीबी साथी आशिक जतोई की थी, जैसी आशिक जतोई को देखा गया तो बराबर में मीर मुर्तुजा खुद बैठे थे। अब इसे बदकिस्मती कहे या इत्तेफाक या हादसा, मीर मुर्तुजा अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि पीछे वाली गाड़ी में आशिक जतोई के साथ पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। गाड़ी रुकते ही मीर मुर्तुजा ने पैसेंजर सीट से शीशा उतारा और मुबैना तौर पर पूछा कि ये क्या हो रहा है। पुलिस अफसरान ने उन्हें बताया कि कुछ नहीं सर, बस रूटीन की चेकिंग हो रही है, कागजात देखने हैं फिर जा सकते हैं। मगर इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, पीछे वाली गाड़ियों में सवार मुर्तुजा भुट्टो के मुहाफिजीन यानी उनके कारकुनान अपनी गाड़ियों से उतर आए और सड़क के बीचों बीच आ गए। अब मुबैना तौर पे इनमें से किसी एक ने एएसपी राय ताहिर के कंधे की जानिब हाथ बढ़ा के उन्हें मुर्तुजा की गाड़ी से दूर धकेलने या धक्का देने की कोशिश की, जिस पे हाथापाई शुरू हुई। इतने में मीर मुर्तुजा भुट्टो के बाकी सब मुहाफिजों ने मीर मुर्तुजा की गाड़ी के गिर्द हिफाजती हिसार बना लिया या घेरा डालने की कोशिश की और इस धक्कमपेल में एएसपी राय ताहिर की कमीज कंधे के करीब से फट गई और सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। एएसपी या मुर्तुजा भुट्टो घुसी और कुछ ही फासले पे खड़े एएसपी शाहिद हयात की टांग में भी लगी। दोनों अफसरान को गोली लगते और जख्मी होते देख के पुलिस एहलकार पूरी शिद्दत से गोलियां बरसाने लगे और मुर्तुजा भुट्टो के मुहाफिजीन भी। एक ऑफिसर ने जो कई साल तक इस मामले से जुड़े रहे बताया कि इसी असना में बिजली मुनक़ता हो गई और पूरे स्ट्रीट पर अंधेरा छा गया। शुएब सडल बताते हैं कि जब मेरी दोबारा वाजिद दुरानी से बात हुई थी तो मैंने पूछा था कि क्या हुआ है, तो मुझे बताया गया कि वाक़या हुआ है। मैंने पूछा कि मुर्तुजा कहाँ है, वहाँ है या घर में जा चुका था, तो एसएसपी ने मुझे बताया कि वो शायद घर के अंदर चले गए थे। मैंने कहा शायद नहीं, देख कर बताओ असल बात क्या हुई है। इसी शदीद फायरिंग की कहानी सुनाते हुए मुतादिद पुलिस अफसरान ने यह भी बताया कि जब 2 सीनियर पुलिस अफसरान को गोलियां लग गईं और दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया तो बिखर जाने वाली पुलिस फोर्स फिर से जमा होकर अंधेरी सड़क पर रुकी हुई गाड़ियों के करीब पहुंची और तब यह हकीकत आश्कार हुई कि मीर मुर्तुजा भुट्टो के 5 साथी ऑन द स्पॉट मारे गए थे, जबकि वो खुद गाड़ी के अंदर अपने दीगर साथियों के साथ शदीद जख्मी हालत में थे। इसके अलावा 2 पुलिस अफसरान शाहिद हयात और हक नवाज सयाल भी जख्मी थे और वहां से गुजरने वाला एक टैक्सी ड्राइवर भी मारा गया था। राय ताहिर ने मीर मुर्तुजा भुट्टो की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जख्मी मगर हैरत ज़दा मीर मुर्तुजा को बाहर निकाला। कोई और गाड़ी ना होने के सबब राय ताहिर ने मीर मुर्तुजा को एक पुलिस मोबाइल के पीछे हिस्से में डाला और वहां से तिबी इमदाद देने के लिए किसी अस्पताल की जानिब रवाना हुए। अब डीआईजी शुएब सडल ने बताया सिर्फ चंद फीट दूर ही सड़क के दूसरी तरफ ही मिड ईस्ट अस्पताल था और पुलिस अफसरान ने फैसला किया कि मुर्तुजा भुट्टो को फौरी तौर पर इमदाद के लिए यहीं ले जाएं। एक साबिक ऑफिसर ने बताया कि पुलिस और मुर्तुजा भुट्टो के हामियों की ये झड़प तकरीबन रात 8:30 बजे हुई, जबकि मुर्तुजा भुट्टो के अस्पताल आमद का वक्त 9:20 दर्ज किया गया। मीर मुर्तुजा भुट्टो अस्पताल पहुंचकर भी इतने होश हवास में थे कि पुलिस मोबाइल से खुद उतर के स्ट्रेचर में मुंतकिल हुए। शुएब सडल कहते हैं कि गले के जख्म से खून बहता रहा। अगर अस्पताल में कोई इस जख्म को टांका लगाता या कम से कम सही से पट्टी कर देता तो खून रुक सकता था और वो महफूज रहते। तकरीबन 1 घंटे की ताखीर से मुर्तुजा भुट्टो के अहले खाना यानी उनकी बीवी गनमा भुट्टो, बेटी फातिमा और बेटा जुल्फिकार जूनियर भी मिड ईस्ट अस्पताल पहुंच गए थे। उन्हें लाने वाला शख्स ने तब तक अस्पताल में बड़ी तादाद में जमा होने वाले सहाफ़ियों को अपना नाम वाजिद बख्श बताया और कहा कि वो मुर्तुजा का ड्राइवर है। अस्पताल में अहले खाना की आमद की भी 1.5 घंटे तक मीर मुर्तुजा भुट्टो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। अस्पताल में बिस्तर पे बैठे हुए ही थे और उनकी एक तस्वीर कई दिन तक अखबारों की जीनत बनती रही, जो आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। मीर मुर्तुजा भुट्टो शदीद तकलीफ से बहुत देर कर्राते रहे और शदीद दुश्वारी के बावजूद सांस लेने की कोशिश करते रहे। अस्पताल लाए जाने के तकरीबन 2.5 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो का बेटा मुर्तुजा दम तोड़ गया और ये वक्त था रात के तकरीबन 11:30 बजे का। और पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल समझे जाने वाले भुट्टो ख़ानदान के इस नामवर सपूत ने ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने की कोशिश के दौरान इस अस्पताल में दम तोड़ गया। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद केस है जिसकी 3 FIR दर्ज हुई। पुलिस की मुद्दत यानी सरकारी मुद्दत में दर्ज हुई, दूसरी FIR में मीर मुर्तुजा भुट्टो के ड्राइवर या किसी मुलाजिम को मुद्दई रखा गया था, जबकि तीसरी FIR अदालती हुक्म पर मीर मुर्तुजा की ज़ौजा गनमा भुट्टो की मुद्दत में दर्ज की गई थी।
اور اسی بات کو لاجک بناتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ افسران کہتے ہیں کہ اگر یہ قتل تھا یا کوئی سازش تھی یا مقابلہ نہیں تھا تو پولیس کہیں نہ کہیں ان 3 FIRs کو عدالت میں چیلنج کر کے کسی نہ کسی طرح سے ایک FIR کم کر سکتی تھی، لیکن پولیس نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ پولیس اپنی جگہ بالکل درست تھی اور پولیس کا موقف صاف تھا، جو کچھ ہوا اتفاق سے ہوا۔ جبکہ اس کیس سے جڑی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے ایک پولیس اہلکار صرف 1 ہفتے کے بعد ہی اپنے گھر میں پراسرار طور پہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ جب پولیس نے سروے کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی سروس پستول سے ہی اپنی کنپٹی پہ گولی مار لی تھی۔